हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख के पता लगा लिया होगा कि आज क्या बनने वाला है। से सोमदत्ता हियर एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये पूरी तरह से एगलेस क्रिसमस प्लम केक मैंने बनाया है बहुत सारे फ्रूट्स और नट्स के साथ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। और फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल माई एक्सपीरियंस एंड माई ट्रिक्स एंड हैक्स विच एवर आई हैव यूज मेकिंग दिस रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये कितना स्पंजी है और कितना सॉफ्ट बना है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था इस केक का। तो ज़रूर ये रेसिपी को शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो चलिए चलते ही एक खूबसूरत सी रेसिपी को शुरू करते हैं। Here I am taking walnut. This packet I have taken from local market, and I am going to take now a mix of fruits and nuts. This one I have taken from Amazon. This is a mix of all the fruits and nuts almost. Here actually the cashew nuts and raisins is little less. That's what I am adding extra cashew nuts and raisins. This caramel cake is full of fruits and nuts, so according to your choice you can add the fruits and nuts. Here few fruits and nuts I am keeping separately. I am going to coat it with the maida because I am going to do the decoration with this. A big bowl I have taken, and in this 1 cup of orange juice will go, and now all the fruits and nuts I am going to soak it, and we will be keeping this for at least 1 to 2 hours. This is actually I have done it before 2 days, but if you don't have time, at least for 1 hour before you just soak it, otherwise the fruits flavor will not come to the orange juice. And here is the Sugar Light packet. This is a 1 kg Sugar Light. Sugar Light is 50% less calorie and it's made by 100% natural ingredients. Like in our recipe we need a 2/3 cup of sugar, but I am going to use only half cup of sugar. This half cup of sugar I am going to divide into 2 parts. So now 1/4 cup I am taking for caramel the sugar. In a heavy bottom tawa or karai you can take, and you can do the caramel first. You no need to add water or anything in the beginning. Once the sugar will be melted, after that you can add the water. I have used cold water only, normal water. If you want you can use hot water, so that ना उसके छींटे ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा ये कैरामल बनाने के टाइम, बिकॉज इसमें बहुत सारी छींटे आती है। Once the caramel is ready, I am going to collect all the wet ingredients. Here I am taking 1/4 cup of milk, 1/4 cup of oil, 50 ml oil also you can take in this recipe. Adding 1 teaspoon vanilla essence. After collecting all the wet ingredients, now I am going to mix it very well, and here we are going to add the powder sugar. 1/4 cup of sugar I have kept separately, that I am going to add now into 2 batches. Once it will mix it very well, we will just see the dry ingredients, all the dry ingredients. चीनी को मिक्सर ग्राइंडर में डस्ट करने के बाद उसको छानना बहुत ज़रूरी है। आप भी ये चीज़ का ध्यान रखिए। Now I am adding 1 cup of maida. Here I am taking 2 tablespoon of milk powder and 1/8 teaspoon nutmeg powder and half a teaspoon of elaichi powder, 1 teaspoon of cinnamon powder, because the spoon is small so I am taking 2 times. Pinch of salt, हाफ टी स्पून ऑफ ड्राई जिंजर पाउडर। अब ये सारी चीज़ों को एक साथ छान लेंगे। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ये मैदा और सारे मिक्सचर थोड़ा उड़ रहा है, लेकिन इसको छानने के बाद ही हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। नाउ वी विल मिक्स इट ऑल द इंग्रेडिएंट्स टुगेदर। एज यू कैन सी इट इज़ quite hard now, so in this time I am going to add the caramel. You see this caramel, if it is little hard you can take the hot water and you can make it little thin, so that it will mix it very well. And now I am adding the dry fruits whichever we have mixed it together, and the orange juice, that both the things we are going to mix it now. Here half a cup of
ड्राई फ्रूट्स एंड ऑरेंज जूस आई एम गोइंग टू मिक्स इट। एंड टूटी फूटी मैं पहले डालना भूल गई थी, तो मैं यहाँ पे टूटी फूटी थोड़ा सा 2 टेबलस्पून जितना टूटी फूटी ऐड कर रही हूँ। आफ्टर मिक्सिंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स नाउ आई एम एडिंग बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। इसमें मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा मैं यूज़ कर रही हूँ। वी नीड टू ऐड बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा एट द एंड बिकॉज सारे चीज़ों को मिला लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यू टेक योर टाइम फर्स्ट टू मिक्स इट वेरी वेल ऑल द इंग्रेडिएंट्स। और देखो ड्राई फ्रूट्स का मैंने हाफ कप ही डाला है, आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हो। इन दिस टाइम वी जस्ट नीड टू मिक्स इट वेरी लाइट हैंड। आप थोड़ा भी विग्रेसली नहीं कीजिएगा, बहुत ही ध्यान से हल्के हाथों से उसको मिक्स कीजिए। और ये केक टिन मैंने रेडी कर लिया है तो इसमें मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी केक जो भी मैंने बैटर रेडी किया है। And here I need to tell you something कि if you are making this kind of cake, जो बटर पेपर और पार्चमेंट पेपर आप जो भी लगा रहे हो हर तरफ से थोड़ा ज़्यादा ऊंचा लगाइएगा, क्योंकि मेरा ना राइट साइड में तो ठीक था, आप देख सकते हो कि, लेकिन लेफ़्ट साइड का जो पेपर था वो थोड़ा छोटा हो गया था। तो इन दैट केस उसको केक ना राइज होने के बाद भी थोड़ा सा जगह और चाहिए था उसको और थोड़ा फूलने के लिए। दिस इज़ आवर प्री हीटेड कढ़ाई, बिकॉज इसको मैंने 10 मिनट पहले रख दिया था गरम होने के लिए। तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज द लीड एंड आफ्टर 30 मिनट्स आई एम गोइंग टू ओपन दिस लीड। After 30 minutes all the nuts whatever I kept outside that has gone inside. So मैं फिर से एक बार नट्स लगा रही हूँ ऊपर से, क्योंकि वो थोड़े नट्स चले गए थे अंदर, लेकिन मैदा से कोट किया था फिर भी चले गए थे। मे बी द मैदा क्वांटिटी वाज लेस। तो इसको रख देंगे फिर से। एंड इसको टोटल बेक होने में मुझे 1 hour 20 minutes लगा था टोटल। After 1 hour and 20 minutes, now the cake is looking like this. You can see the knife is coming totally clean. So I am going to keep it outside. After taking out the cake, I am going to cover it with the clean cloth, and we will not touch this unless it should be cool down totally. Once it will cool down, I am going to show you how it is look like. अभी केक पूरी तरह से ठंडा हो गया है। द ओनली वन थिंग इज़ विच आई नीड टू चेंज इन दिस रेसिपी, आई थिंक वी शुड कीप द बटर पेपर और पार्चमेंट पेपर एकदम परफेक्टली थोड़ा और ज़्यादा ऊंचा रखना था। Otherwise in this recipe all the ingredients measurement everything is perfect, because you can see the cake is looking so nice. and आप कितना measurement लेते हो और किस तरह के pot में बनाते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके केक कैसा फूलेगा और कैसा सॉफ्ट या स्पंजी बनेगा। तो मेरा केक एकदम से स्पंजी था, टेस्ट में बिल्कुल सही था। तो ओनली थिंग इज़ वो साइड से थोड़ा उसको जगह नहीं मिला, बटर पेपर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था। तो आप भी इसी बात का ध्यान दीजिए और इसी मेजरमेंट के साथ बताए हुए तरीके के साथ आप केक को बनाइए और ये क्रिसमस एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो वॉच कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों के एक सब्सक्राइब और एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, ना कि मुझे, सारे यूट्यूबर्स को। ये एक बहुत बड़ा चीज़ है हमारे लिए। और इसमें इस केक में ना आप ऑरेंज के जेस्ट भी डाल सकते हो, जो मैंने डाला नहीं है अभी इस बार। लास्ट ईयर मैंने डाला था, लेकिन उस टाइम मैंने मैदा से नहीं बनाया था, मैंने बिस्किट से बनाया था। तो यू कैन चेक आउट दैट रेसिपी ऑल्सो। सो यू कैन क्लिक इन द आई बटन एंड यू कैन चेक आउट दैट। अदरवाइज लिंक आई एम गोइंग टू प्रोवाइड in the description box, that also you can watch. Do subscribe to our channel and hit the bell icon so you will get all the notification whenever I'll upload a new recipe. और डेफिनेटली क्रिसमस एंजॉय कीजिए बहुत अच्छे से सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बहुत अच्छे अच्छे केक्स रेसिपीज़ बनाइए। आप लोग मेल कर सकते हो मुझे, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, ये मेरी इंस्टा आईडी है और ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, टेक केयर।